डेमोक्रेसी जो 22-23 दलों ने पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एसआईआर के विषय में, ये दिखाता है कि कितने सिलेक्टिव है। एसआईआर केरलम और तमिलनाडु में होता है, चुनाव जीतते हैं तो वो संस्कारी एसआईआर है। बंगाल में एसआईआर होता है, वहाँ पे हार जाते हैं तो वो दुराचारी एसआईआर है। यही रवैया ईवीएम को भी लेकर था। अब ईवीएम पे शांत हो गए, एसआईआर पर बोलने लगे। और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, और ये ठीक से हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन कर रहा है। पर उनको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। दरअसल एसआईआर बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर सिलेक्टिव निशाना है। ये दरअसल केवल और केवल एक एलिबाई एक्सक्यूज है इन परिवारवादियों का। So gang war and murder happen. सर अबाउट एसआईआर जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगे इस अपोजिशन के बोगी पर? See, this is called peak selective hypocrisy of the opposition. The same opposition, when it wins, when SIR is done in Tamil Nadu and Kerala, it is Sanskari SIR. When they lose, when SIR is done in Bengal, then it becomes Durachari SIR. Actually, SIR, EVM, this is just a bahana. This is an alibi because they want to save themselves from defeat. When they win elections with EVM, they don't question the election commission. When they win elections and SIR has happened, they don't question it. And this shows that how they do not even have faith in Supreme Court. Supreme Court has ruled on SIR, has said it is constitutional, it has been done properly. In fact, they could provide no evidence against any wrongful deletions. But despite that, they want to create a mahol against Samvidhanik Sanstha, against constitutional bodies, because they want to save themselves from impending defeats. Murder and gang war happened at Karnataka. It's in a daylight incident. It's really shocking for everybody. What's your opinion on that? See, the law and order situation in Karnataka has gone from bad to worse under Congress because Congress's focus is not Janta, it is Satta. And because of that, open gang wars, brutal murders with machetes, no fear of the law or police, open on the road molestation, gang rapes are taking place, women's safety and law and order has completely deteriorated. Brand Bengaluru has been destroyed by Congress. Bad roads, bad infrastructure, bad economic situation, high corruption is the only gift that people of Karnataka has got from Congress party despite paying high taxes. Therefore, people have decided in 2028 they are going to get rid of Congress instead of having some shame. This Priyank Khadge and other leaders, they are justifying the murder, saying it is a personal rivalry. And so UCC bill has approved in the West Bengal. It's finally after a long wait this bill has passed. देखिए, यूसीसी महिला सशक्तिकरण और जेंडर एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। ये संविधान के अंदर एक संवैधानिक प्रावधान है और जहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनती है वहाँ पर यूसीसी लागू करने के लिए वो उपयुक्त कदम उठाती है, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो या अब बंगाल हो। तो बंगाल में लंबे समय तक माँ, माटी, मानुष और बेटी का दमन किया गया। आज बेटियों को हथियार दिया जा रहा है कि वो अन्याय से लड़ सके, परंतु दुख की बात है कि यूसीसी के नाम पर एक मंडली बीबीसी बन चुकी है। भड़काऊ भाईजान कमेटी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इसका जमकर विरोध कर रही। दरअसल वो मुस्लिम कट्टरपंथी वोट्स के लिए केवल और केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है, उसकी बलि चढ़ाती है। और इसीलिए बार बार शाहबानू से शायरा बानू से विमेन रिजर्वेशन और अब यूसीसी, हर जगह ये जमात इसको विरोध करती है। सर ओबीसी अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ वेस्ट बंगाल में, which will be really beneficial for the West Bengal people. देखिए, लंबे समय तक टीएमसी मतलब तुष्टिकरण मुझे चाहिए वाली सरकार थी और ओबीसी की जब लिस्ट आती थी तो उसमें 95%, 98% रिजर्वेशन ओबीसी का एक वोट बैंक, एक समुदाय को दे दिया जाता था वोट बैंक के नाम पर। मतलब आम्बेडकर जी ने जिस बात के लिए मना किया था कि धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, बैकडोर से एंट्री कराकर मजहब के नाम पर पूरा आरक्षण दिया जाता था। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ऐसी ओबीसी लिस्ट को खारिज किया था जिसमें कि 99% मुस्लिम थे और ओबीसी नाम मात्र थे। और आज इस पूरी व्यवस्था को पूरा ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार ने किया है, क्योंकि ओबीसी समाज का अधिकार हो या दबे कुचले वंचित पिछड़े शोषित समाज का अधिकार हो, उसको सुनिश्चित करने का काम केवल बीजेपी की सरकार ने किया है। पहली बार 370 हटाकर वंचित समाज को आरक्षण देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि ये ओबीसी के साथ है, पर ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया सिद्धरमैया जी को राहुल गांधी ने,
और ओबीसी के आरक्षण में भी सेंधमारी करके वोट बैंक को देने की साजिश ये एएमयू में भी की, जामिया में भी की, जब यूपीए की सरकार थी तब भी कर रहे थे और आज भी ये लोग करते हैं। इसको रोकने का काम बीजेपी ने किया है। सर सरला भट्ट केस में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक बड़ा अपडेट आया है कि यासीन मलिक और 5 लोगों का नाम चार्जशीट में आया है। इट्स अ लॉन्ग वेट। देखिए, जस्टिस डिले हो सकता है पर जस्टिस कभी डिनाई नहीं होगा, और यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ध्येय वाक्य है। हमने देखा है कि वर्षों तक कश्मीरी हिंदू समुदाय को न केवल जेनोसाइड और एक्सोडस फेस करना पड़ा, पर उसके बाद उनके घावों पर नमक रगड़ने का काम कांग्रेस और उस समय की सरकारों ने किया। तुष्टिकरण की नीति के चलते यासीन मलिक को गांधी विद गन्स ये कहकर बिरयानी खिलाने के लिए मनमोहन सिंह के कार्यालय में बुलाया गया और यासीन मलिक को एक एम्बेसडर ऑफ पीस की तरह प्रस्तुत किया गया। वही यासीन मलिक जिसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, वही यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के लोगों का हत्यारा था, वही यासीन मलिक जो सरला भट्ट का एक अपराधी था। आज सरला भट्ट हो या बाकी कश्मीरी हिंदू हो, उनको न्याय देने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, पहले उसका कदम था 370 हटाना, जिससे कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में आई, और उसके बाद जिस प्रकार से एक के बाद एक ये जो हिस्टोरिक रॉन्ग्स को करेक्ट करने की एक मुहिम चली है, मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए। पर दुख की बात है कि आज भी कांग्रेस पार्टी कश्मीरी हिंदुओं से और हिंदुओं से इतनी नफरत करती है कि वो यासीन के लिए जो है उनका इकोसिस्टम छाती पीट रहा है, सरला भट्ट के लिए नहीं। नितिन नबीन जी ने कहा, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, कि बीजेपी के पार्टी वर्कर्स भी फुल टाइम है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। देखिए, नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम देशद्रोही है। मैं तो ये कहूँगा कि वो पार्टी टाइम नेता है, पार्ट टाइम नेता नहीं है। उनको पार्टी चाहिए, उनको अपनी पार्टी नहीं चाहिए, उनको पार्टी करना है। इसीलिए आम लोग जो है, नॉर्मल लोग जो है, वो 2 वर्क पीरियड में 1 वेकेशन लेते हैं। राहुल जी 2 वेकेशन पीरियड में थोड़ा सा वर्क करने भारत आते हैं, वरना वो विदेश में, अभी भी वो विदेश में ही है। एलओपी का मतलब भी उन्होंने बनाया है लीडर ऑफ पार्टिंग एंड पर्यटन। तो राहुल गांधी जो है वो पार्टी टाइम नेता है। 26/11 हुआ, वो पार्टी कर रहे थे। फिर उसके बाद देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, विधानसभा इलेक्शन होते हैं, वो पार्टी करने चले जाते हैं। वो पार्टी में नहीं, पार्टियों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति है। उनको जन सेवा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज भी वो विदेश में है। और विदेश में भी जाते किसके पैसों पर? सोरोस के सुपारी पे जाते हैं। सोरोस पैसा उनको देते हैं, वो फंड करते हैं, वो विदेश जाते हैं, सोरोस की ट्रेनिंग लेकर आते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। अभी भी कहीं गए होंगे, कांग्रेस बता नहीं रही कहाँ गए हैं। वो हो सकता है कि वहाँ पे सीक्रेट मीटिंग चल रही होगी कि भारत के खिलाफ और कौन सा एजेंडा बाहर करना है। तो देखना 2-3 दिन में आ जाएगा।